define if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. What does it mean? It means, सर हम आपको 3 पॉइंट्स दे रहे हैं 1, 5, 2, 3, -2, -11. क्या आप हमको बता सकते हैं ये सरल रेखा में है? अगेन क्वेश्चन ये पैदा होता है, आप कहोगे भाई सीधी सी बात है, ग्राफ पेपर मुझे दे दो, मैं ग्राफ पेपर के ऊपर डाल दूंगा, लाइन ड्रॉ करके बता सकता हूँ कि लाइन में है या नहीं है, स्ट्रेट लाइन में. मगर बात ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट दैट यू विल बी गिवन ग्राफ पेपर. You are not given the graph paper and still you have to say whether it will be in straight line or not. Then for that purpose how to solve it, let us see. क्या हम बता सकते हैं? Yes, बता सकते हैं. Let I will say that this is A 1, 5, this is B 2, 3 and say this is -2, -11. हमेशा ये बात याद रखना कि आप ए बी सी इसको कहिएगा जरूर. अब हम एक काम करेंगे, हम ए बी का डिस्टेंस ढूंढेंगे. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ए बी. ए बी का डिस्टेंस जब आप ढूंढोगे तो फॉर्मूला होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए बी विल बी इक्वल टू, आप देखो यू कैन से दैट दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2, दिस इज y2. अब आपको क्या करना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 2 - 1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 यानी 3 - 5 होल स्क्वायर. x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 2 - 1 का स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर होगा -2 स्क्वायर. 2 - 1 का स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर होगा -2 स्क्वायर. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 + 4. यानी ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, √5 यूनिट्स. कितना हो गया, √5 यूनिट्स. उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है, पहले तो आपने ए से बी की, ए और बी के बीच की दूरी ढूंढ ली. अब बी और सी के बीच की दूरी ढूंढ लीजिए. कैसे ढूंढोगे, अगेन सेम फॉर्मूला. बी की वैल्यू है 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट है 2, 3, सी का कोऑर्डिनेट है -2, -11. तो इसको आप कहोगे x1, इसको आप कहोगे y1, इसको आप कहोगे x2 और इसको आप कहोगे y2. अब आपको ढूंढना है डिस्टेंस BC. तो हर बार आप फॉर्मूला लिखोगे नहीं. लेट मी रिपीट अगेन. एवरी टाइम you don't have to write the formula. First time already you have written. If you keep on writing for many times, don't think that every time you'll get the marks. No. First you have written the formula. Second time you don't have to write the formula. In the second time what I am doing is -2 x2 - x1. That means what? -2 -2 whole square. Here -11 -3 whole square. x2 - x1 whole square, y2 - y1 whole square. So this will be equal to how much? -2 and -2 is -4 square and -11 and -3 is -14 square. So this if I add it, what I'll get is, I'll get 4 square is 16 and 14 square is 196. 14 square is 196. So if I add it, this I'll get 6 + 6 is 12, carry 1, 10 + 1 here is 11 and then again I will get here 112 units I'll get. This plus this 6 + 6 is 12, carry 1, 9 + 1, 10 + 1, 11 and then here what I'll get is 196 + 16, I'll be getting here 212 units. So if you want, you can simplify this 212. 212 can be simplified like this. 212 means what?
2 2 1s are 2, 0 you can write here 6, 2 6 are 12, 2 5s are 10 and 2 3s are 6, and then again it becomes a prime number. So that means what? This becomes 4 into 53, and 4 into 53 means it becomes 2 root 53 units. 2 root 53 units. This is root 5 units. Now if I want AC, next what I should find out is, I should find out AC. See, the coordinate of A is 1 and 5. The coordinate of C is -2, -11. Now in the third step, what I am doing is, I am directly solving the problem. See here how I solve it. Use it in a technical way. See here, what I do is, this is x1 y1 and this is x2 y2. So x2 minus x1, that means -2 -1. So -2 -1 whole square. y2 minus y1, that means what? -11 -5 whole square. So this, if I solve it, children, this will be equal to -2 -1 is -3. Directly you try to solve it now. -2 -1 is -3. -3 square is 9. -11 -5 is -16. -16 square is 256. -16 square is plus 256. Now if you add these two, this will become 265. This will become 265. Now 265, if I had to simplify, just see if at all what I can do here. 265 can be written as 5 5s are 25, carry 1, 5 3s are 15, and then again it becomes a prime number. So it cannot be simplified. What I want to tell you, children, is if it is a collinear point, then sum of any two points will be equal to the third side. For example, मैं आपको एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा. मान लीजिए A है, ये B है और ये C है. ओके, अगर A 2 यूनिट है और BC 3 यूनिट है, तो AB प्लस BC किसके बराबर होना चाहिए? AC के बराबर होना चाहिए. तब हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है. यानी AC 5 यूनिट है, AB 2 यूनिट है, BC 3 यूनिट है, तो ये होगा 2 + 3 = 5. अगर ऐसा है तो वो कोलिनियर है. मगर आप यहाँ पर देखिए, AB है √5, BC है 2 √53, ये आ रहा है 5 √53. यानी हर लिहाज से हम ऐसे बोल सकते हैं कि AB + BC is not equal to AC, therefore it is not collinear. यानी डिस्टेंस फॉर्मूले का उपयोग हमने कहाँ पर किया? 2-3 बिंदु सरल रेखा में है कि नहीं, उसे देखने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया. We are using the distance formula to calculate whether the 3 given points are collinear or not collinear. So what we did for that purpose, the sum of the first and the second distance, second and the third distance should be equal to the first and the third distance. And if it is not equal, then it is not collinear. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे? यानी आपको हम 3 पॉइंट्स दे रहे हैं, 5 -2 दे रहे हैं, 6 4 दे रहे हैं, 7 -2 दे रहे हैं. क्या इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर डालेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा? आप फिर वही कहोगे, सर हमको ग्राफ पेपर दीजिए, फटाफट हम पॉइंट्स बना देंगे. ट्रायंगल को जोड़ दिया, सर 2 साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. मगर बात इतनी आसान नहीं है. बात यहाँ पर क्या है? इज इट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? यानी आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा. तो डिस्टेंस फार्मूला आप कैसे यूज करोगे? फिर से आप कहोगे लेट A 5 - 2, B 6 4, C 7 - 2, 7 - 2. तो पहला आप क्या कीजिए,
ए और बी के बीच की दूरी ढूंढी है, और उसको ढूंढने का तरीका आपको मैंने बताया है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी थोड़ा डायरेक्ट लिखना आप सीखिए बच्चों, डायरेक्ट लिखना आप सीखिए। ये है x1 y1, ये है x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस ऑफ माइनस 2। देखो कैसे करता हूं मैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। x2 माइनस x1 मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर। और बच्चों माइनस ऑफ माइनस 2 क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस 2 क्या होता है, 6 माइनस 5 का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर हो गया। 4 माइनस ऑफ माइनस 2 होता है बच्चों, माइनस ऑफ माइनस 2 होगा प्लस, 4 प्लस 2 होगा 6 और 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 36, और 1 प्लस 36 यानी कितना हो गया, √37 यूनिट्स। यानी इफ यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B, the distance is √37 units. Now let us try to find out the distance BC. BC के लिए B is 64 and C is 7 minus 2. अब डोंट यूज द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, बार बार फॉर्मूला उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली करना सीखो। डायरेक्टली कैसे करोगे, डायरेक्टली कैसे करोगे इसको आप x1 y1, बार बार ये भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, थोड़ा यू शुड प्रैक्टिस इट अ लिटिल बिट। सिंपल है, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6, y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 4, यानी क्या कर रहा हूं मैं, देखिए आप थोड़ा, 7 माइनस 6 -2 माइनस 4। सो अगेन आप देखो कि 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 का स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर, -2 माइनस 4 होगा -6 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 36 एंड दैट इज इक्वल टू √37 यूनिट्स। तो बच्चों अब आप बोलोगे प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो गया, क्यों? क्योंकि A से B की दूरी और B से C की दूरी इक्वल हो गई, दो साइड्स इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि AB इक्वल टू BC, देयरफॉर द पॉइंट्स आर representing आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफ पेपर लेकर इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर सकते हो और आप इसको चेक कर सकते हो। अब कुछ सम स्टूडेंट्स में आस्क, सर व्हाई डिडंट यू कैलकुलेट AC? There is no need for me to calculate AC because the question says whether it is an isosceles triangle or not. And if at all I want to find out whether it's an isosceles triangle or not, two sides should be equal. भैया AC ढूंढने की क्या जरूरत है? अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई दो डिस्टेंस √37 है, दो साइड्स की लंबाई बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर भी अगर आपको उत्सुकता है तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बच्चों। फिर भी अगर उत्सुकता है तो आपको एक प्रैक्टिस में कराने के लिए आपको बता सकता हूँ कि AC का कैसे करना है। एग्जाम में ये मत कीजिए, एग्जाम में ये मत कीजिए। A है -5 -2, C है 7 -2। अगर आपको उत्सुकता है तो डायरेक्टली इसको आप कैसे कर सकते हो, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं कि AC इक्वल टू, अब देखिए बच्चों डायरेक्टली मैं कैसे करता हूं, थोड़ा ध्यान देना इसको। ये है x1 y1, ये है x2 y2, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो तीन स्टेप डायरेक्टली मैं करता हूं, फॉर्मूला भी नहीं लिखता हूं, ये भी नहीं लिखता हूं, यहां पर पहुंच जाता हूं सीधा। कैसे? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 7 - 5
का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 इज 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 7 माइनस 5 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस ऑफ -2, -2 माइनस ऑफ -2 इज 0, सिंपल है, -2 माइनस ऑफ -2, -2 माइनस ऑफ माइनस इज +2, ये 0 होगा, यानी 0 का स्क्वायर 0 होगा, यानी AC की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 हो रही है। सर आपने ये कैलकुलेट क्यों किया? ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैंने कैलकुलेट किया है, एग्जामिनेशन में इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली हाँ, अगर ये पूछेंगे कि वेदर इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तब आपको ढूंढना पड़ेगा कि AB, BC, AC तीनों इक्वल होना चाहिए। अगर सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ रहे हैं तो नॉट नेसेसरी एट ऑल, ओनली 2 साइड शुड बी इक्वल।